Does it hate communism, socialism? यहाँ पर कौन फोटो खिंचाना चाहता है? This guy. Who is this? He is the Jordan Peterson. His work is characterized by lucid prose, social criticism, opposition to totalitarianism, and support to democratic socialism. His hair very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by the coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended. अब हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कि हम लोग को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेगा अपना नीड्स या अपना रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री. डीमोनिटाइजेशन. Hey, hello, what's up? आज को हम लोग बात करेंगे अबाउट 1984. 1984 is a novel written by George Orwell. Who is George Orwell? What is this novel about? And क्यों लिबरल्स यानी कि हम लोग मोदी जी को इसके साथ कंपेयर करते रहते हैं, इसके बारे में भी आपको आज को समझ में आएगा. बट इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझना पड़ेगा कि जॉर्ज ऑरवेल है कौन, किस पर्सपेक्टिव पे ये नोवेल वो लिखे थे एंड क्या चीज़ है ये नोवेल सिग्निफाई करती है. इज़ इट अगेंस्ट कम्युनिज्म एज अमेरिका ट्राइज टू पोर्ट्रेट, और इज़ इट लाइक अ थिंग दैट इज़ एंटी टोटलिटेरियन और एंटी डिक्टेटोरियन? कौन सा है? डज इट हेट कम्युनिज्म, सोशलिज्म, और डज इट like favors socialism in a way but is against the totalitarian nature of communism? Which one is it? आज को हम लोग ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो मैं हूं दीपक मलिक, आप देख रहे हैं मेरा शो. चलिए शुरू करते हैं. सो या बाय द वे ये निकल गया तो दिखाई देते. आई एक्चुअली स्ट्रीम दिस वंस एंड बिकॉज ऑफ बैड इंटरनेट कनेक्शन आई हैड टू प्राइवेट इट. सो या आई एम रिकॉर्डिंग इट एज अ वीडियो बट it's gonna be like a live stream as you see. So सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जॉर्ज ऑरवेल के बारे में. Who is जॉर्ज ऑरवेल? जॉर्ज ऑरवेल का एक्चुअल नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर. एरिक आर्थर ब्लेयर was a British novelist, essayist, journalist and critic who wrote under the name जॉर्ज ऑरवेल. मतलब एरिक आर्थर ब्लेयर का पेन नेम था जॉर्ज ऑरवेल. उसके बाद उसका काम के बारे में लिखा हुआ है. इस वर्क is characterized by lucid prose, social criticism, opposition to totalitarianism, and support to democratic socialism. It is very important actually, and support to democratic socialism. He wasn't against communism as Jordan Peterson or any other Americans try to portray George Orwell to be. Again, आप जॉर्ज ऑरवेल का और बाकी सारे बुक्स पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. ही इज़ नॉट अगेंस्ट कम्युनिज्म बट ही वॉज अगेंस्ट द टोटलिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियन नेचर ऑफ कम्युनिज्म दैट एग्जिस्ट, जो कि चाइना में आज भी शायद एग्जिस्ट करता है, जो कि रशिया में आज भी शायद एग्जिस्ट करता है. शायद क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग को उस जगह का बारे में उतना पता नहीं है. सो वी कैन श्योरली से अबाउट दैट प्लेस. By the way, he is a big shot. You can say by this, right? One second. Yeah, ये है BBC के सामने जॉर्ज ऑरवेल का पिक्चर नहीं, मूर्ति है. एक बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है जॉर्ज ऑरवेल का. BBC के सामने ही बनाया हुआ है. 22 हार्लम स्ट्रीट, लंदन, W and United Kingdom. A statue of George Orwell by the British sculptor Martin Jennings was unveiled on 7th November 2017 outside Broadcasting House, the headquarters of the BBC in London. Again BBC के हाउस के बाहर, BBC के हाउस यानी कि मेन जो हेड ऑफिस है उसके बाहर जॉर्ज ऑरवेल का स्टैचू बनाया हुआ है. यहाँ पर कौन फोटो खिंचाना चाहता है? दिस गाय. Who is this? He is the Jordan Peterson. He was a psychiatrist who talks about social structures that exist, who talks about censorship, and who became famous because he misunderstood a law in the first place.
He thought that Canada was supposedly censoring him, and he tried talking about the law, and he got famous by misunderstanding a law that prevents misgendering on a willful basis, and he misrepresented the law and misunderstood it. कौन सा हुआ था I can't say, but he became famous by that, and अभी he is known for his positions in a certain political sphere, okay, and he is extremely anti-socialism, anti-communism. I don't know why. Apparently that's super bad for your health or something like that, but yeah, जॉर्डन पीटरसन के बारे में कुछ अच्छा देखना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो. नो, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड. इट्स जॉर्डन पीटरसन का बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ. इट्स क्वाइट डिसेंट, यू नो. जॉर्डन पीटरसन का जो चीज़ दैट विल मेक यू बेटर इन लाइफ, उसके बारे में लिखा हुआ है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग योर रूम. बट अगेन ये बुक पढ़ के आप ये मत सोचो कि ही इज़ अ ग्रेट गाय. अगेन आप इसके बारे में कुछ खराब सोच रहे हैं तो आई विल शेयर वीडियोस, लिंक्स, एंड वी कैन रिएक्ट टू दोज थिंग्स ऑन द स्ट्रीम्स दैट वी डू. बट या, दिस इज जॉर्डन पीटरसन बिलो जॉर्ज ऑरवेल्स स्टैचू, लाइक ऐसे करके खड़ा हुआ है. यू कैन से दैट. या अब 1984 क्या है? 1984 इज अ नोवेल बेसिकली, राइट, जहाँ पर एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, वन कंट्री वन लीडर वन लैंग्वेज टाइप का सिचुएशन. समझ में आ रही है ना? या इन सारे जगह पे वो जो वन कंट्री का वन लीडर है उसका सारे जगह में फ़ोटो लगाया हुआ रहता है. एंड हम लोग के बिग ब्रदर के बारे में भी एक वीडियो है बाय श्याम मीरा सिंह, देख सकते हो. आवर बिग ब्रदर ऑल्सो लव्स एडवर्टाइजमेंट टू हिज कोर. सो या, ये वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आएगा हम लोग का बिग ब्रदर भी कैसे एडवर्टाइजमेंट को पसंद करते हैं. सो वेल, 1984 जो नोवेल था वहाँ से 1984 साल पे एक मूवी निकला. एंड 1984 में जो मूवी निकला था जिसका नाम था 1984, वहाँ से इंस्पायर्ड एक शो निकला जिसका नाम था बिग ब्रदर. एंड अमेरिका में वो बिग ब्रदर का पहली शो अराउंड 2000 पे हुआ था. एंड आई शो दिस बिग बॉस, जो हम लोग का क्वाइट अ पॉपुलर शो है, इज इंस्पायर्ड from the Big Brother. Big Brother is inspired from the film, and the film is inspired from this novel. So this basically inspired all those things. तो चलो बुक पढ़ते हैं, बहुत देर बक कर लिए, राइट? तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, मतलब बुक पढ़ना शुरू करते हैं. बट उसके पहले आई वुड आस्क यू अ फेवर, आइदर बाय द बुक फ्रॉम समवेयर, या लाइक इसका फ्री PDF भी किधर मिल जाएगा इंटरनेट पे, उसको डाउनलोड करो एंड उसका पहले एक चैप्टर को प्रिंट करा लो, ठीक है? एंड देन यू वुड बी एबल टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द लाइन्स जो कि लिखा हुआ है, सो दैट मैं जो बोल रहा हूँ आपको फॉरेन ना लगे, एंड मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आपको दिख जाए व्हाट एम आई सेइंग रॉन्ग, और हम जो बोल रहा हूँ सही है नहीं है, एंड आपको फॉलो करने में भी सुविधा हो. इसीलिए आप आइदर ये बुक खरीद लो, या आप इसका फ्री PDF जहीं से भी आपको अवेलेबल हो उसको डाउनलोड करके उसका पहले एक चैप्टर का एक पार्ट डाउनलोड कर लो, बिकॉज इस एक चैप्टर के अंदर में भी 2 ही पेज इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे. एंड या, प्लीज डू दैट. सो या, लेट्स कंप्लीट माई फूड हेयर, राइट हेयर. उसके बाद हम बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नमस्कार, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 पार्ट 1. It was bright cold day in April and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the wild wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अप्रैल का एक ठंडा दिन है जब दोपहर का 1 बज रहा है. विंस्टन स्मिथ, जिस मेन कैरेक्टर का नाम है, हिज चिन नजल्ड इनटू हिज ब्रेस्ट, मतलब ऐसे डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हुआ है. इन एन एफर्ट टू एस्केप द वाइल्ड विंड, मतलब जो विंड में डस्ट घूम रही है वो डस्ट से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा हुआ है. एंड ही इज ट्राइंग टू एस्केप द डस्ट एंड एंटर इनटू देयर अपार्टमेंट.
slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions. Victory Mansions is the apartment where this guy Winston Smith lived. Victory Mansions के अंदर उसका एक अपना फ्लैट है एंड वो अपार्टमेंट पे काफ़ी सारा फ्लैट्स होती है, जैसे नॉर्मल सारे अपार्टमेंट पे होती है वैसे ही उस अपार्टमेंट पे भी काफ़ी सारे फ्लैट्स है. देन वही अपार्टमेंट का नाम है विक्ट्री मैंसन्स. दो नॉट क्विकली इनफ टू प्रिवेंट अ swirl ऑफ gritty dust फ्रॉम एंटरिंग along with him. मतलब वो बहुत जल्दी ही घुस गया था, बट उतना भी जल्दी नहीं घुसा ताकि उसके साथ कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी ना घुसे, इतना भी जल्दी नहीं घुसा था. मतलब उसके साथ कुछ डस्ट या धूल घुस गया विंड के साथ साथ. द हॉलवे स्मेल्ट ऑफ बॉइल्ड कैबेज एंड ओल्ड रग मैट्स. मतलब जो हॉलवे से वो अंदर घुस रहा था उस हॉलवे में बॉइल्ड पत्ता गोभी जैसा स्मेल आ रहा था. बॉइल्ड मतलब उबला हुआ पत्ता गोभी जैसा स्मेल आ रहा था एंड उसके साथ ओल्ड रग मैट्स का स्मेल आ रहा था. अब रग मैट्स हम हिंदी में हमको नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बंगाली में उसको चौटेर बोस्ता कहते हैं, राइट. ओके, लेट मी शो यू व्हाट इज अ रग मैट. या दिस थिंग इज बेसिकली चौटेर बोस्ता या रग मैट. अब आप एक्चुअली देखने जाओगे व्हाट इज़ रग मैट, राइट. अब एक्चुअली सर्च करने जाओगे द टर्म रग मैट, वहाँ पर आपको कारपेट्स दिखाएगा, बट लाइक बेसिकली इधर यही वाला चीज़ बोला जा रहा है. ओके. एट वन एंड ऑफ इट अ कलर्ड पोस्टर टू लार्ज फॉर इंडोर डिस्प्ले हैड बीन टक्ड इनटू द वॉल. मतलब जिस हॉलवे से वो अंदर घुस रहा था उस हॉलवे का दूसरा साइड पे एक बहुत बड़ा पिक्चर लगाया हुआ था, टक इन किया गया था वॉल पे. मतलब वहाँ पे वॉल पे लगाया गया था बेसिकली, एंड पिक्चर तो अंदर डिस्प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था. मतलब द पिक्चर वॉज टू बिग फॉर एन इंडोर डिस्प्ले. इट डिपिक्टेड एन इनॉर्मस फेस मोर देन अ मीटर वाइड. पिक्चर किसका है? एक इनॉर्मस, एक बहुत बड़ा फेस का है, एंड वो फेस 1 मीटर से भी लंबा है. द फेस ऑफ अ मैन ऑफ अबाउट 45. जो फेस है उस बंदे का अराउंड एज है 45, विथ हेवी ब्लैक मस्टैच एंड रगडली हैंडसम फीचर्स. मतलब वो फेस हैंडसम है पर थोड़ा थोड़ा लाइक रफ लुकिंग है, एंड उसके साथ उसका बहुत हेवी एंड लाइक बोल्ड मस्टैचेस है, राइट. लाइक जिसको बंगाली में गोफ कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट्स कॉल्ड इन हिंदी, बट लाइक या मूछ कहते हैं जिसको. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times, it was seldom working. And at the present, the electric current was cut off during the daylight hours. It was the part of the economic drive in presentation for heat week. अब क्या बोल रहे हैं? Winston stairs की तरफ आगे बढ़ गया to go up to his flat, क्योंकि उसको पता था कि लिफ्ट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था. कॉज उस टाइम में ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द हीट वीक जो कि गवर्नमेंट उस टाइम पे चला रहा था. एंड उस हीट वीक के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेस या करंट सेव करना पड़ता, इसीलिए नॉर्मल डे लाइट आवर्स पे उन लोग का करंट कट कर देता था गवर्नमेंट. अब ऐसे भी उसका लिफ्ट नहीं चलता था, बट उस टाइम में और भी चलने का चांस नहीं है, सो ही डिड नॉट ट्राई द लिफ्ट एट ऑल. अब हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कि हम लोग को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेगा अपना नीड्स या अपना रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री. डीमोनेटाइजेशन. ओके. द फ्लैट वॉज 7 फ्लाइट्स अप, यानी कि जिस फ्लैट पे विंस्टन रहता था उसका 7 फ्लोर ऊपर जाना था बेसिकली विंस्टन को. मतलब विंस्टन अभी जहाँ पर था वहाँ से 7 फ्लोर ऊपर उसका फ्लैट था. एंड विंस्टन who was 39 had a varicose ulcer above his right ankle. राइट एंकल मतलब पैर का, जिसको अगेन बंगाली में गोराली कहते हैं. दिस पोजिशन, राइट, लाइक दिस थिंग इज कॉल्ड एंकल, एंड इसका ऊपर उसको एक अल्सर यानी कि एक घाव था. वेंट स्लोली रेस्टिंग सेवरल टाइम्स ऑन द वे. मतलब उसकी उम्र 39 ईयर्स था एंड पैर पे घाव था, इसीलिए बहुत रुक के वो ऊपर उठ रहा था. ऑन ईच लैंडिंग ऑपोजिट द लिफ्ट शैफ्ट द पोस्टर विथ इनॉर्मस फेस गेज फ्रॉम द वॉल. मतलब
जब विंस्टन ऊपर उठ रहा था, वहाँ पर जब भी लिफ्ट शैफ्ट के ऑपोजिट आ रहा था, वहीं पे उसको दिख रहा था वो जो बड़ा पोस्टर हम बोले, उस पोस्टर का पिक्चर। एंड वो पोस्टर के पिक्चर जब भी उसको दिख रहा था, उसको लग रहा था कि उसका पिक्चर उसी को देख रहा है, यानी कि लाइक विंस्टन जब भी मूव कर रहा था उसी को फॉलो कर रहा था पिक्चर, ऐसे ही विंस्टन को लग रहा था। इट वॉज वन ऑफ दोज पिक्चर्स विच आर सो कंट्राइव दैट द आईज फॉलो यू अबाउट व्हेन यू मूव। मतलब कुछ पिक्चर्स ऐसे होती है जो आप मूव करने से भी आपको लगेगा कि आप ही को उसका आईज देख रही है। एंड वैसे एक पिक्चर का एग्जांपल है मोनालिसा। एंड ये जो पिक्चर लगाया हुआ था विंस्टन के घर पे, अपार्टमेंट पे, वाज आल्सो लाइक दैट। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, द कैप्शन बीनीथ इट रैन। मतलब वो पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। Inside the flat, a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig iron. The voice came from an oblong metal plate like a dulled mirror which formed a part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. मतलब क्या बोल रहे हैं? विंस्टन अपने घर के अंदर घुसा, अपने फ्लैट के अंदर घुसा। वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ चीज़ लगा देता था जिसको बोला जाता था, जो कि टीवी जैसे बेसिकली होता था। एंड उससे गवर्नमेंट जो भी चाहता था वही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था। एंड यू डू नॉट हैव द कंट्रोल कि आप क्या देखोगे, जैसे अभी भी आपको नहीं है गोदी मीडिया। बट वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था। अभी आप टीवी चाहने से बंद कर सकते हो, बट उस सिचुएशन पे वो बंद भी नहीं कर सकते थे, जो टीवी वाले मैकेनिज्म था उसको विंस्टन क्या किया, घर घुस के उसको थोड़ा सा डिम किया, यानी कि उसको थोड़ा सा आस्ते किया, जो कि कर सकता था बट बंद नहीं कर सकता था। पर आस्ते करने के बाद भी जो वॉइस आ रहा था वो टीवी लाइक मैकेनिज्म से वो डिस्टिंग्विशेबल था, यानी कि उसको समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा था जब वो विंस्टन जब घुसा, वो पिग आयरन यानी कि रॉ आयरन का प्रोडक्शन के बारे में कुछ लिस्ट एंड फिगर्स के बारे में बात कर रहा था, कुछ डेटा दे रहा था, डेटा एनालिसिस कर रहा था, राइट? ओके। द इंस्ट्रूमेंट, द टेलीस्क्रीन इट वाज कॉल्ड, कुड बी डिम्ड बट देयर वाज नो वे ऑफ शटिंग इट ऑफ कंप्लीटली। The instrument, the telescreen it was called, could be dimmed but there was no way of shutting it off completely. मतलब अगेन जैसे बोले, इसको डीम यानी कि आस्ते धीरे किया जा सकता है, उसका लाइट घटाया जा सकता है, बट इसको completely बंद करने का कोई तरीका नहीं था। He moved over to the window, a smallish, frail figure, the meagerness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party. मतलब क्या बोल रहे हैं? विंस्टन अपने खिड़की के पास गया। अ स्मॉलिश फ्रेल फिगर, मतलब विंस्टन का फिगर स्मॉल था, छोटा था, फ्रेल था मतलब वीक था। एंड द मीगरनेस ऑफ हिज बॉडी मेयरली एम्फसाइज्ड बाय द ब्लू ओवरऑल्स व्हिच वर द यूनिफॉर्म ऑफ द पार्टी। विंस्टन पहना हुआ था ब्लू ओवरऑल्स यानी कि ब्लू टॉप एंड ब्लू बटन्स, एंड जो कि पार्टी का यूनिफॉर्म था, जो कि रूलिंग एक्टिव पार्टी के यूनिफॉर्म था, वही वो पहना हुआ था। एंड द मीगरनेस ऑफ हिज बॉडी वॉज एम्फसाइज्ड बाय दैट, मतलब उसका बॉडी का जो इनकम्प्लीटनेस है। मीगरनेस का मतलब हम लोग देख लेते हैं। मीगरनेस मतलब लैक ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, इन एडिक्वेसी, मतलब उसका पास जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो कर रहा था उसका लाइफ पे सेटिस्फेक्शन नहीं था। ही वॉज basically not satisfied. He was feeling inadequate in himself. His hair very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by the coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended. मतलब क्या बोल रहे हैं? His hair very fair, मतलब उसका hair सादा था, he had white hairs. His face naturally sanguine, again sanguine मतलब हम लोग देख लेते हैं, I know the meaning but like I'm just showing you. Sanguine मतलब cheerful, hopeful और confident. यहाँ पर cheerful और confident तो नहीं होगा, but he is hopeful for the future. He thinks that something good will happen and the ruling party will go away. So we should be hopeful in our situations. We should think that everything will go away and something democratic will happen.
His face naturally sanguine, again sanguine matlab he is hopeful about it. His skin roughened by the coarse soap and blunt razor blades and the cold winter that had just ended. मतलब उसका फेस रफ था क्योंकि वो कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा खार वाला सोप यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सोप यूज़ करता था. रेजर ब्लेड्स मतलब जिस जो ब्लेड से वो अपने शेविंग करता था वो ब्लंट होता था. एंड द कोल्ड ऑफ द विंटर दैट हैड जस्ट एंडेड. जो ठंडी के टाइम में आपका देखोगे कि फेस थोड़ा सा फट जाता है एंड उससे आपका फेस थोड़ा रफ लगता है. एंड उस ठंडी के कारण से, वो बेसिक एल्कलाइन सोप के कारण से एंड ब्लंट रेजर ब्लेड के कारण से उसका फेस बहुत ज़्यादा रफ था. ही हैड फेयर हेयर मतलब वाइट हेयर्स था. एंड हिज फेस वॉज नेचुरली सैंग्विन मतलब ही वॉज होपफुल फॉर द फ्यूचर. आउटसाइड इवन थ्रू द शट विंडो पेन द वर्ल्ड लुक्ड कोल्ड. मतलब जब विंस्टन अपने खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड विंस्टन को नहीं निकलना चाहिए. Down in the street, little eddies of wind were whirling dust and torn papers into spiral. And though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no color in anything except the posters that were plastered everywhere. The black mustachioed face gazed down from every commanding corner. यहाँ क्या बोल रहे हैं? बाहर देख के विंस्टन को लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर हवा दे रहा था एंड धूल और पेपर का फटा हुआ पीसेस घूम रहा था एंड उसका रोल्स बन रहा था बेसिकली इन द विंड. धूप था बट फिर भी सब कुछ कलरलेस लग रहा था. स्काई ब्लू था बट फिर भी किसी चीज़ में विंस्टन को कलर दिख नहीं रहा था एक्सेप्ट फॉर द पिक्चर्स जो कि बिग ब्रदर का लगाया हुआ था ऑल अराउंड हिम. एंड उस बिग मस्टैचर्ड फेस ऐसे लग रहा था कि सारे कमांडिंग कर्नर्स यानी कि सारे जगह से, सारे ऊंची बिल्डिंग से विंस्टन को नीचे की तरफ देख रहा है. देयर वॉज वन ऑन द हाउस फ्रंट इमीडिएटली ऑपोजिट. बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू द कैप्टन सेड. यानी कि विंस्टन जिस घर पे रहता था उस अपार्टमेंट का डायरेक्टली ऑपोजिट में या सामने में जो अपार्टमेंट था वहाँ पे भी बिग ब्रदर का पिक्चर लगाया हुआ था एंड उसके नीचे लिखा हुआ था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू द कैप्टन सेड while the dark eyes looked deep into Winston's own. मतलब डार्क आईज ऑफ द बिग ब्रदर का पोस्टर वर लुकिंग इनटू विंस्टन. तो विंस्टन को लग रहा था कि बिग ब्रदर उसको दिल तक, उसका अंदर तक देख पा रहा है एंड इट वॉज अ डीप कनेक्शन दैट ही वॉज फीलिंग विद द पोस्टर्स पिक्चर. डाउन एट street level, another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind, alternatively covering and uncovering the single word INGSOC, inch sock. इंच सॉक का मतलब क्या है हमको नहीं पता. लेट्स गूगल इट. ओके, इन द फिक्शनल टोटलिटेरियन स्टेट ऑफ ओशनिया, इंच सॉक इज द फिलोसफी दैट the regime follows and enforces. The idea of both INSOC and the existence of Newspeak, the language that created by the government, is to control the population and limit their ability to think freely. Okay, तो यह क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि INSOC is the type of communism that this government followed and उसके लिए एक लैंग्वेज लोग यूज़ करता था जिसको न्यू स्पीक बोला जाता था या न्यूज स्पीक बोला जाता था. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो ये क्या बोला? डाउन एट द स्ट्रीट लेवल, अनदर पोस्टर torn at one corner fitfully flapped in the wind, alternatively covering and uncovering the single word INSOC. मतलब रोड का एक एंड पे विंस्टन को दिख रहा था कि एक पोस्टर लगाया हुआ था जिसके नीचे लिखा हुआ था कि INSOC एंड एक कोना फटा हुआ रहने के कारण से वो वर्ड तो एक बार कवर हो रहा था एंड एक बार अनकवर हो रहा था ड्यू टू द विंड. इन द फार डिस्टेंस अ हेलीकॉप्टर skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a blue bottle and darted away again with a curving flight. मतलब दूर पे दिखा विंस्टन को कि एक हेलीकॉप्टर दो बिल्डिंग के बीच पे आया,
रुका, देखा, सर्विलेंस किया एंड फिर से एक कर्व्ड पाथ लेके निकल गया। इट वॉज द पुलिस पेट्रोल स्नूपिंग इनटू पीपल्स विंडोज। मतलब ये पुलिस का पेट्रोल था, यानी कि पुलिस देख रहा था कि कोई क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड इसीलिए वो लोग के घर के अंदर डायरेक्ट झांक मारने के लिए रहता था, राइट? The petrol did not matter. However, only the thought police mattered. पर इसके बाद विंस्टन ऐड कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो पेट्रोल होता था, पुलिस पेट्रोल होता था, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बट उससे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करता था दैट वाज थॉट पुलिस। थॉट पुलिस क्या होगा या क्या है, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, या एक्चुअली आई नो आई हैव रेड लाइक चैप्टर 1 पूरी पढ़े हैं, तो हमको पता है कि थॉट पुलिस बोलने से ये क्या बोल रहा है। बट या इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पुलिस दैट दिस गवर्नमेंट यूजेस टू कंट्रोल पीपल्स थॉट्स कैसे पता होता था उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिहाइंड द बैक ऑफ विंस्टन, the voice from the telescreen was still babbling away about pig iron and the over-fulfillment of the 9th 3-year plan. मतलब विंस्टन के पीछे वो जो टेलीस्क्रीन था, वो जो टीवी लाइक मैकेनिज्म था, उसमें ब्लैबर कर रहा था अबाउट द ओवर फुलफिलमेंट ऑफ पिग आयरन। मतलब जो रॉ आयरन के खुदा या जो भी चीज़ उसकी गवर्नमेंट करती थी, उसके ऊपर जो ओवर फुलफिलमेंट गवर्नमेंट किया था इन द 9th 3-year प्लान। 9th 3-year प्लान मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर 3 साल का प्लान रखता था। जैसे नेहरू का 5-year प्लान था, वहाँ पर 3 साल का प्लान रखता था, एंड ये 9वीं 3 साल प्लान में जो पिग आयरन के ऊपर फुलफिलमेंट या ओवर फुलफिलमेंट हुआ था गवर्नमेंट का, उसी के बारे में बात कर रहा था टेलीस्क्रीन। द टेलीस्क्रीन रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। मतलब टेलीस्क्रीन से जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता था वैसे इंफॉर्मेशन लिया भी जाता था, यानी कि किसी के घर पे रिकॉर्ड भी किया जाता था, उसका वॉइस रिकॉर्ड किया जाता था टू सी आर दे फॉलोइंग गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, आर दे थिंकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आर दे टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन देयर ओन डैम हाउस और नॉट, बेसिकली दैट. Any sound that Winston made above the level of a very low whisper could be picked by it. Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plate commanded, he could be seen as well as be heard. मतलब जिस दायरे पे टेलीस्क्रीन उसको रहने बोलता था, उस दायरे पे अगर विंस्टन रहता तो उसको सुना भी जा सकता था या देखा भी जा सकता था. इसीलिए विंस्टन उसके बाहर खड़ा था, एंड उसके बाहर खड़े रहने के बावजूद भी उसको बहुत धीरे बात करना पड़ रहा था, सो दैट उसका बात, विंस्टन का बात टेलीस्क्रीन उठा ना ले, एंड वो अपने मन पे भी जो बात करेगा उसको भी अगर उठा के गवर्नमेंट को लगेगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे है तो गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकता था. देयर वाज ऑफ कोर्स नो वे ऑफ नोइंग वेदर यू वर बीइंग वॉच्ड एट एनी गिवन मोमेंट. हाउ ऑफन और ऑन व्हाट सिस्टम द थॉट पुलिस प्लग्ड in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time, but at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. मतलब ये जो लाइव फुटेजेस लोग के घर से लिया जाता था वो कहीं पे सेव किया जाता था, या कोई देखता था या कोई देखता नहीं था, वो किसी को पता नहीं था. बेसिकली जब भी उसको सर्विलेंस किया जाता था वो किया जाता था बाय थॉट पुलिस, एंड दैट्स अगेन द यूज़ ऑफ द पुलिस, जो आपका थॉट या आपका घर के अंदर जो बातें चल रही है उसको देखने के लिए एग्जिस्ट करता था. एंड किस मोमेंट पे किसका घर पे सर्विलेंस चल रहा है ये भी बताना नामुमकिन था, पर ये कंसीवेबल था कि ऐसे भी हो सकता था कि सारे घर पे एक एक करके बंदा लगा दिया था गवर्नमेंट टू सी कि क्या चीज़ चल रहा है, एंड क्या वो बंदा अपने घर पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कुछ चीज़ बोल रहा है या कुछ चीज़ सोच रहा है जो कि थोड़ा सा लाउड है. बट एट एनी रेट दे कुड प्लग इन योर वायर व्हेनेवर दे वांटेड टू. मतलब इतना सारा चीज़ तो है कि कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे ये कंफर्म नहीं था, बट जब वो लोग चाहेगा तब आपका घर वो लोग देख सकता है, ये प्रिटी कंफर्म था. यू हैड टू लीव, डिड लीव फ्रॉम द हैबिट दैट बिकेम इंस्टेंट
the assumption that every sound you made was overheard and except in darkness your every movement is scrutinized. मतलब as विंस्टन वैसे समाज पे रहता था, जैसे विंस्टन वैसे पॉलिटिकल सिनेरियो पे रहता था, एंड विंस्टन के साथ साथ जो भी बंदे उस पॉलिटिकल सिनेरियो पे रहता था उसका एक इंस्टेंट बन गया था, उसका एक नॉन वॉलेंटरी एक मोशन बन गया था कि वो जो भी बातें करेगा अपने घर के अंदर वो सुनाई देगा गवर्नमेंट को, एंड इसलिए बहुत आस्ते बात करना पड़ेगा या अंधेरा छोड़ के जब भी वो कुछ भी मूवमेंट करेगा वो भी गवर्नमेंट पिकअप कर सकता है एंड उसको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं या उसको देख के उसको जज कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकता है अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो। बस आज के लिए इतना ही, पर नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीम पे, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्ट्रीमिंग फॉर्मेट पे दिख रहा है एंड अगेन आपको हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है, पर हमको एडिट भी ऊपर से करना पड़ रहा है। सो देयर आर 3 इनकन्वीनियंसेस दैट आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो इसका सोल्यूशन यही है, हम स्ट्रीम पे ही बाकी पार्ट पढ़ेंगे, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू, आप ये बुक खरीद लो, नहीं तो आप फ्री PDF कहीं से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लो सो दैट यू कैन फॉलो इन स्ट्रीम। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन, मेरा कोई लाइक अंडरस्टैंडिंग कोई पर्टिकुलर पैरा का गलत है तो आप हमको डायरेक्टली बोल सकते हो या आप समझ सकते हो या हमको आप टोक सकते हो कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। एंड एज आई हैव वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, यू कैन सी यू कैन डायरेक्टली टॉक विथ मी इफ यू वांट, राइट। तो मैं आज के लिए चलता हूँ, बाय फॉर टुडे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सशक्त बक्से में बंद, बड़े बड़े लगा उस पे जंग और गंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद, घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग, घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं, यही था शुरू से मुझे करना।